मंकी क्या खाता है? बनाना। क्या खाता है? आप मुझे बता सकते हो ये क्या है? बताओ। अच्छा इसको देखो, एक बार देखो। मैम वो एप्पल खा रहे, मेरे को भी खाना है एप्पल। भूख लगी है मेरे को। भूख लगी है तो इसके बाद हम लंच करेंगे। आपका बनाना पता है खाना आपको है? बनाना भी खाएंगे हम एंड में, लेकिन उसके लिए आपको मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। Lively. बहुत बढ़िया। Very cute. बहुत है ना? Very cute. बढ़िया। Full उसकी आंखें जो है ना, और तारे हैं उसकी आंखों में। कम। Are you going to give us some tea or coffee? Your teaching is okay, please. हाँ yeah. बैठिए। पूनम हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में? बताइए कुछ अपने बारे में। थोड़ा तेज। I have completed my diploma in special education in intellectual development with disability. I have qualified my central teacher eligibility test in year 2025. I took interest in painting, especially in boho and kawaii paintings, as these help me to create creative stuff for my students and help me with my mental peace. Thank you. कौन सी पेंटिंग होती है आपने? Boho painting and kawaii. वो क्या होता है? So they are freestyle paintings which do not have limits. They use earthy natural things, which is great for students with developmental disabilities, as they face problem with lines as well. And kawaii painting is making the concrete things livable by giving them eyes and cute smiles and blushy cheeks. Can you just draw a bit and show it to us? Yes, ma'am. The boho and the kawaii paintings. Ma'am, this is basically a kawaii painting. This is a bottle. It is a concrete material, but when I give it a eyes and smile, it is livable for children. They consider it as a living being. And in boho painting, Yeah, use it. ma'am, there is no lines. There are pastel colors, and whatever our brush goes, we just draw. There is one ugly thing which is sun or moon. I'm considering it as sun. And then there is lines here with beautiful colors crossing each other and creating a beautiful reflection. And the second thing is we can use leaves. I personally use leaves here. I make leaves that signifies the nature and make my painting more beautiful. So what is the difference between this kind of a painting and the one which the late M.F. Hussain used to draw? I have no knowledge about it because it is not my hobby. I just took it. Because that's also abstract. Yes. This is also kind of abstract, right? Yes. So in case you are asked a question like that, please have a look at it, okay? राजा रवि वर्मा का नाम सुना है आपने? बैठिए। राजा रवि वर्मा का नाम सुना है? पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेंटिंग के बारे में अच्छे से इंटरेस्ट रखो ना। मैंने इसको मतलब कहीं देखा था, मुझे बहुत ऐसे इच्छा हुई कि मैं करना स्टार्ट करूं, बट जब मैं करने लगी तो ये मुझे मेरी टीएलएम प्रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करने लगा, तो मैंने इसको और अच्छे से। चलो अलवर बताओ, अलवर क्यों फेमस है? अलवर में क्या ऐसा है जो फेमस है? सर सबसे पहला तो वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे साइज का टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है। अलवर का? यस सर। क्या नाम है रिजर्व का? साइज का टाइगर रिजर्व सर। सर इसका? यस वो तो अलवर से दूर है। ये सब थोड़ा दूर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीच में ही आता है अलवर के। वो 1995 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको डिक्लेयर कर दिया गया। चलो मान लेते हैं। दूसरा बताओ। So second is CD Sir Lake, which is recently became a Ramsar site, and the third is Bala Killa, which is known as Kuara Killa because it is not depleted and not conquered by any of the three rivers. And the food is milk cake of the place, very famous. मिल्क केक बहुत फेमस है। मैंने सोचा था तुम मिल्क केक लेकर आई हो। Next time I will bring it. Yeah, okay. चलो अब केवीएस के बारे में बताओ। So it is established in 15 December 1963
earlier Central School Organization. Later it changed into Kendriya Vidyalaya. कहाँ था इसका दफ्तर उस समय? CS होगा ना, सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ खुला था दिल्ली में? ये बहुत फेमस जगह है। ये डॉल म्यूजियम है ना? डॉल म्यूजियम नहीं देखा आपने? नेहरू हाउस नहीं देखा? मैं दिल्ली में पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हो? चलो आगे बढ़ो। And sir, it has 25 regional offices, 5 sites, and the chairman of Kendriya Vidyalaya Sangathan is our respected Education Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan sir. Apart from that, It is Education Union Minister or Union Education Minister? Huh? Who is the state minister who is dealing with KVS? मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता होगा। जो पता है तो फटाफट बोल दिया। अच्छा, आप ना अपने टीचिंग एड से कुछ पढ़ाना चाहते हैं? नेक्स्ट 5 मिनट हम आपसे कुछ बात नहीं करेंगे। आपके क्लास में बच्चे मूक हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहे हैं। आप यूज़ करना चाहें कुछ भी, बट हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं हमें पढ़ा के दिखाइएगा। बस आपकी क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप अपने समझो कि आपको मुझे कुछ ऐसा कराना है कि हम रिस्पॉन्ड करने लग जाएं। बट आपकी क्लास में पर्सन विद डिसेबिलिटीज बैठे हैं। मतलब डिफरेंट है, वी जस्ट नो मेंशनिंग वो ID MD LR व्हाटएवर, बस हैं कुछ ना कुछ तो जो आपको चाहिए। डिफरेंट टाइप के लोग हैं। बस सारे अलग अलग। जो आपका है। Good morning, my little smart children. How are you? You all are fine? You all are looking so beautiful today. Acha. You, can you come here? Please come here. See, I've got your monkey. Please come here. Come here. Come here. Do you also want a monkey? You don't want a monkey. Do you want a monkey? Do you? Okay. So, can you? Okay. आपको पता है आज मैं आई ना तो मुझे किसी ने एक रिडल पूछी और मुझे उसका आंसर नहीं आया। आपको भी बताना है, ठीक है? ये पिक्चर जानते हो ना कौन है? मंकी है। इससे रिलेटेड मुझे एक रिडल पूछी, तो आप गैस करना कि क्या ये ही है वो या कोई और भी तो एनिमल हो सकता है ना। तो पता है मुझे क्या पूछता है? आई हैव अ टेल। क्या पूछता है? आई हैव अ से क्या है मेरे पास? एक डंडा है और मंकी की टेल भी होती है। क्या होती है? पूंछ। वेरी गुड, ठीक है। और वो क्या खाता है? मंकी क्या खाता है? बनाना। क्या खाता है? आप मुझे बता सकते हो ये क्या है? बताओ। अच्छा इसको देखो, एक बार देखो, ये क्या है? आपने खाया है कभी? Why are you laughing? Don't laugh at me. Okay? ये बताओ क्या है? ये क्या है? बनाना। मंकी बताओ आपके पास क्या है? मैम वो एप्पल खा रहे, मेरे को भी खाना है एप्पल। आप क्लास में नहीं खा सकते, पता ना लंच होता है, क्लास में नहीं खाते। आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना। भूख लगी है मेरे को। भूख लगी है तो इसके बाद हम लंच करेंगे। आपका बनाना पता है खाना है? आपको बनाना भी खाएंगे हम एंड में, लेकिन उसके लिए आपको मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप मुझे जवाब दोगे तो मैं आपको एप्पल भी दूंगी। What is this? This is a okay. Monkey eats banana. Yes, monkey eats a banana. क्या है ये? Banana. Okay. And monkey climb on. मैडम मैं सीट पे चला जाऊँ, मेरे पैर दुख रहे हैं मैडम। Okay, आप चले जाओ। थैंक यू। मैम से मंकी बनाना खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं। और भी खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट तो मंकी का है ना। जो मंकी की जो फेवरेट चीज है वो क्या है? वो है एक बनाना। आज की जो हमारी स्टोरी है ना वो एक इस मंकी के ही बारे में है। पता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो मंकी बहुत स्मार्ट है। कैसा है वो मंकी? आपने आईज क्यों क्लोज किया? आप स्मार्ट नहीं हो। ये एक मंकी है। क्या है? आप इसको पकड़ना चाहोगे? चलो इसको होल्ड करो और बताओ मुझे क्या है ये? दिस इज अ मंकी। क्या है? रिपीट करो मेरे साथ।
अगर आप रिपीट करोगे तो मैं आपको आज आपकी नोटबुक में एक स्टार दूंगी। बताओ क्या है ये? मंकी। रिपीट विथ मी, मंकी। सो आज का हम एक लेसन पढ़ेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं इसमें क्या लेकर आई हूँ? सोचा किसी ने? तो इसमें बहुत सारा कचरा है। इसमें क्या लिखा है? यूज मी। ये क्या है? डस्टबिन है। ठीक है, तो अब हमारी क्लास कितनी अच्छी है, लेकिन अगर मैं अपनी क्लास को गंदा कर दूं, बहुत ज्यादा गंदा, अब अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है क्लास? नहीं लग रही। तो ऐसे ही जो हमारा एक मंकी होता है, उसको भी कचरा नहीं पसंद। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया? मंकी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, डम्ब होता है? बताओ। स्मार्ट। स्मार्ट होता है। आप बताओ। मैम ये बोलता ही नहीं, इसको तो कभी बोलना ही नहीं होता। कोई नहीं, आप मुझे बस एक्शन करके बता दो, मंकी स्मार्ट होता है या डम्ब होता है? ओके, स्मार्ट होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्मार्ट मंकी। बताओ, द स्मार्ट मंकी। द स्मार्ट मंकी। रिपीट करो मेरे साथ, सभी बोलो। ये आपका रिपीटेशन माना जो है ना, वो कर रही है बार बार। सो हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो दो दोस्तों की है। आप सभी के दोस्त है ना? मेरे तो दोस्त हैं। है ना? आपके भी दोस्त है। वैसे ही मैं दो मेरे दोस्त नहीं है हैं। कोई भी दोस्त। मैं आपकी फ्रेंड बन जाती हूँ। आज से मैं आपकी फ्रेंड। ओके, मैं आपकी फ्रेंड। ठीक है, आपके हैं फ्रेंड्स? है, फ्रेंड है आपके, फ्रेंड है। मैं भी हूँ फ्रेंड आपकी। और नेक्स्ट टाइम हम फ्रेंडशिप करेंगे। ओके, ठीक। तो दो दोस्तों की कहानी है। पहला दोस्त पता है कौन है? मैं आपको नाम बताती हूँ। जो पहली दोस्त है उसका नाम है अंजू। क्या नाम है? अंजू। क्या नाम है? अंजू। ओके, मैं इसको यहाँ पर राइट कर देती हूँ। और जो दूसरा दोस्त है उसका नाम पता है क्या है? चलिए बस बस, अब आपको ना एक वो सिखाना है, छोड़ दीजिएगा। आपको ना आपके सिचुएशन एक आईडी का स्टूडेंट है, जिसमें आप, आपकी क्लास में एक आईडीडी का स्टूडेंट है। आप क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं मनी हैंडलिंग का। तो उसमें बच्चा जो है, आप कॉइन के बारे में बता रहे हैं, तो कॉइन के बारे में तो समझ जाता है, लेकिन जो चेंज होता है ना, जी कुछ दिया और उसके बदले में क्या मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा। तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि चेंज का कॉन्सेप्ट क्या होगा? बैठ के बताइए आराम से। नहीं, कोई नहीं, बैठा आप, इसे बंद करने बस। इट्स ओके। सर, सबसे पहली चीज जो मैं कर सकती हूँ, मैं पहले उसे करके दिखाऊंगी कि चेंज मिलता कब है। पहली बात तो मैं उसे ये नॉलेज दूंगी कि कितने पैसे देने के बाद, कि पहले हमें प्राइस चेक करना होता है चीज़ का। उसके बाद अगर वो प्राइस उस चीज़ का कम है और हमारे जो मनी की है वो ज़्यादा है, तो हमें चेंज मिलता है। उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका मैं जानती हूँ वो है कि मैं एक स्टॉल लगाऊँ, जिसमें मैं बहुत सारे डिफरेंट कुछ फेक करेंसीज, फेक नोट्स में लेके आऊँ, क्योंकि शायद बच्चा जो है रियल करेंसी जो नोट्स है उनको शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। मैं फेक करेंसी नोट्स उनको यूज़ करके एक स्टॉल लगा सकती हूँ, जिसमें मैं एक बच्चे को जो शायद एक पीयर बडी सिस्टम के थ्रू सिखा सकती हूँ। उसमें एक जो बच्चा है उसका पीयर बना के मैं उसे दुकानदार बना सकती हूँ, और जो दूसरा बच्चा है उसको पहले दिखाने के लिए एक और स्टूडेंट को लाकर मैं कहूँगी कि अगर ये इससे ये चीज़ ले रहा है और इसमें 5 लिखा है और हमने 10 का नोट दिया है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि बच्चा है जो बेसिक कैलकुलेशंस जैसे माइनस प्लस ये कर पा रहा है नहीं, उसको इसकी नॉलेज है। अगर उसकी नॉलेज है, उसके बाद मैं उसे बताऊंगी कि इन्होंने अगर 10 रुपये दिए हैं और उन्हें 5 रुपये की चीज़ भी दी है, सबसे पहले टैग पढ़ना सिखाएंगे उन्हें, जो भी चीज़ पर लिखा है। उसके बाद उन्हें सिखाया जाएगा कि इसको माइनस करके जो भी करेंसी वापस आती है वो कॉइन पे मेंशन होती है और हमें उसे वापस देंगे। ऐसा मैं शायद 2 या 3 अच्छा, मान लीजिएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में फिलहाल ना 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, और अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2 न्यू डिसेबिलिटीज़ हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बोलें कि ऐड कर दी जाएँ, तो कौन सी है रिसेंट टाइम में?
अच्छा, आईडीडी के अंदर क्या क्या शामिल है, मतलब कौन कौन से डिसेबिलिटी को हम आईडीडी के अंदर ले सकते हैं? Sir, the most prevalent is cerebral palsy, हम्म autism spectrum disorder, हम्म specific learning disability, हम्म epilepsy, हम्म and sometimes hearing and visual impairment. अच्छा, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एडीएचडी एंड ऑटिज्म? सर ADHD में जो स्टूडेंट होता है शायद उनकी जो थिंकिंग है या फिर जो उनकी इंटेलिजेंस है वो शायद नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो स्टूडेंट होता है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम होती है। ADHD में कम्युनिकेशन बच्चों का बहुत काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, लेकिन जो ASD का बच्चा होता है उसका सोशल कम्युनिकेशन और जो उनका इंटरेक्शन होता है बहुत कम होता है। ADHD वाले बच्चे में हम नॉर्मली दो चीज़ें देखते हैं, कुछ बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं जिनको हम इंटरेक्टिव टास्क देके सिखा सकते हैं, जगह बिठा सकते हैं, बट ASD वाले बच्चे बहुत स्ट्रक्चर अपने रूटीन के लिए बहुत पर्टिकुलरली एकदम स्ट्रक्चर्ड रहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंडली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन को एकदम मना कर देता है, उसे नए लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, हैंडशेक्स हाई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है। बल्कि जो ADHD वाला बच्चा होता है वो इंजॉय करता है नए लोगों से मिलना, उनके साथ सीखना। कुछ बच्चे होते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं नेचर में, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन उन्हें भी हम सिखा सकते हैं अगर उनको क्लास में या फिर बच्चों के साथ बिठाएं। लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाला बच्चा होता है वो ज़्यादातर फ्रेंडशिप्स अवॉइड ही करना पसंद करता आपने कभी जाइट का नाम सुना है? है। सर क्या है ये? सर जोनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कितने हैं ये? सर नीचे KVS का पता है। केवीएस के बताइए, सर कहाँ कहाँ पे है? जगह जगह है। पूछना आपको? तो एक चीज और आप मुझे बता दी, आपने ना एक डीडीआरसी का नाम सुना होगा, क्या है डीडीआरसी का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये पहला सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? सर बस मुझे पता है कि इसका वर्क क्या है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं अच्छा, तो आपको उल्लास के बारे में पता है? है। क्या है, व्हाट इज उल्लास? अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्निंग और मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि अगर जैसे हमारा पहले एनईपी आता था, वो सॉरी एनसीएफ 2005 आया, तो 2005 आया, उसके बाद 2020 में एनईपी 2020 आई, और अचानक से फिर ऐसा लगा कि जैसे एक साथ कई सारे आगे, फिर एनसीएफ एसई आया, एक एनसीएफ एफएस आया, तो इतने डॉक्यूमेंट्स की अचानक से इंडिया को क्या नीड पड़ गई कि आज से 20 साल पहले सिर्फ एनईपी 2020 वो एनसीएफ 2005 चल रहा था और अभी अचानक से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए? सर तो सबसे पहली चीज़ तो एनईपी में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को इंक्लूड किया है, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और अलग से ट्रेनिंग की नीड होती है। सेकेंडली जो है कि हमारी जो एजुकेशन है वो चेंज हो रही है। पहले जो वो ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड थी, हम डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर देते थे चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं पेडागोजी रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें टीचर ट्रेनिंग को इंक्लूड किया गया है। सबसे मेन चीज़ जो टीचर है अगर वो सब्जेक्ट और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखेगा तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएगा। और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा फोकस इसी पे किया जाता है कि बच्चा जो है वो सेंटर में रहे और टीचर उनको पढ़ाने के लिए न्यू एड्स का यूज़ करे, सीखे, और वो नए नए जो एग्जाम्स कंडक्ट। मेरा बस लास्ट सवाल आपसे एक है कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज का जो एनसीएफ आया है, उसमें जो नीचे के 3 to 8 वाला जो हम लेके चलते हैं, उसमें नीचे की तरफ जो 3 है, जैसे आप कहा जाता है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तो आ ही जाएगा, बट उससे नीचे जैसे हम प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है। केंद्रीय विद्यालय में वो जो 3 नाम हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? प्री स्कूल, आंगनबाड़ी एंड बाल। अच्छा, ये स्पेशल एजुकेटर की नीड क्यों पड़ी? मैम क्योंकि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी नीड्स अलग होती है, उनकी जो करिकुलम होता है वो भी अलग होता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटी का फंक्शनल करिकुलम होता है और वो शायद एक जनरल टीचर ना सिखा। ऑलराइट, ओके, पर अभी क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है? पहले भी तो थी ना? यस मैम, बट पहले इतना रेलेवेंट नहीं था। IDRPWT एक्ट के बाद जो है बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है। पहले सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी तो शायद इस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे डिसेबिलिटी इंक्रीज हुई, इस पर बहुत सारा मूवीज हुई, सेंसिटाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान भी दिया है। आपको क्या लग रहा है कि जो रेशियो पहले था और जो रेशियो अब है बढ़ गया है? यस मैम। कितना कितना हाउ मच परसेंटेज? ओके, अच्छा, And why? आप बोलिए। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मैम फर्स्टली तो मतलब जो मैटरनल केयर है वो थोड़ी हम कम करा रहे हैं। जैसे कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे
कम ही एम्फेसाइज किया जाता है। सेकेंडली, जो आजकल हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे कि बाद में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो मतलब बाद में होती है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर होता है, जिससे कि बच्चा जो मेंटली भी इल हो जाता है। आईडी की बच्ची है जिसे सैनिटरी पैड और सेल्फ हाइजीन का नहीं पता, तो आप उसे कैसे सिखाएंगे? ये आपका आईडी गोल है। मैं सबसे पहले तो टास्क एनालिसिस करूँगी, और जो मेन मुझे लगता है वो कि मैं खुद उसे इस बारे में बताऊँ, उसकी फैमिली से बात करूँ इस बारे में, कि वो भी घर पर इस बारे में उसे बताएं, और इसको मतलब ऐसा शेम ना समझकर एक हमारा पार्ट समझे हमारी लाइफ का। और ये एक अच्छी चीज़ होती है, ये उसे बताऊँगी। साथ में जो सैनिटरी नैपकिन्स होती है वो यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए मैं या तो उसको वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ जिससे वो घर पे भी देखें, या क्लास में अगर और भी गर्ल्स हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ सबके सामने, वरना मैं उसे स्पेशली बुलाकर भी सिखा सकती हूँ हाइजीनिक टिप्स के बारे में, और उनकी फैमिली से भी कंसल्ट कर सकती हूँ ताकि वो घर पर भी वो चीज़ उसे बताए जो मैं उसे बता रही हूँ, ताकि वो जनरलाइज कर पाए उन चीज़ों को। सब्जेक्ट टीचर्स स्पेशल एजुकेटर के पास आए हैं क्लासरूम में, उन्होंने किसी बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर ऑब्जर्व किया जो कि दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, तो आपका क्या रोल है वहाँ पे? वो स्पेशल एजुकेटर को बता रहे हैं कि मैम मुझे लगता है ये बच्चा कुछ डिफरेंट है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम ये क्लास में शो करता है। मैम जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शायद मैं कोई असेसमेंट चेकलिस्ट हाँ, सिलेक्ट कर तो पाऊँ। मैं पूछना चाह रही हूँ आप कैसे असेस करेंगे बच्चे को कि किस कैटेगरी के अंदर क्या दिक्कत है उस बच्चे को, और आप कैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे? मैम तो फर्स्ट थिंग जो स्क्रीनिंग होती है, मैं स्क्रीनिंग करूँगी कि सच में कोई बच्चे में इशू है पढ़ाई से रिलेटेड, या कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो वीकनेस दिखा रहा है उस एरिया में। साथ में स्क्रीनिंग से मुझे पता चलेगा कि उसे फर्दर असेसमेंट की नीड है या नहीं। अगर उसे एकेडमिक्स में कोई परेशानी है तो जैसे में टूल्स आते हैं MDPS, FECP, ऐसा कुछ यूज़ कर सकती हूँ। अगर फिर इंटेलिजेंट में कोई दिक्कत है तो मैं बेसिक ऐसे जो टूल्स हैं वो उस पर यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मैं देखूँगी उसका इवेल्युएट करके कि बच्चे की जो लर्निंग है वो किस एरिया में ज़्यादातर इफेक्ट हो रही है। उसके बारे में मैं नॉलेज गेन करूँगी कि कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकती, तो मैं ऑब्वियसली किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लूँगी इसमें कि वो कौन सी डिसेबिलिटी है ये मुझे बताएं। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड जो एजुकेशन में बेनिफिट्स होते हैं मैं फैमिली को बता सकती हूँ कि जो ये डिसेबिलिटी होती है वो क्योरेबल है या नहीं, हम इसको इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं या नहीं, या फिर कौन से डॉक्टर्स को हमें कंसल्ट करनी चाहिए जिससे कि जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। साथ में मैं स्कूल में उस बच्चे के लिए स्पेशल एक रिसोर्स रूम होता है हमारे पास, मैं उसमें उसे सिखा सकती हूँ। क्लास में इसके बारे में एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रख सकती हूँ, या जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ऐसे ही एक स्कूल में प्रेयर के टाइम प्रोग्राम करा सकती हूँ, जिससे कि ज़्यादा स्कूल का भी टाइम बर्बाद ना हो और हम एक अच्छी चीज़ भी सीख जाए। क्लास सवाल, हाँ जी आप। क्लास 9th में बच्चा है मैथ्स और साइंस पास आउट नहीं कर पा रहा कंटिन्यूसली 3 ईयर से, अब आप क्या कर सकते हैं बच्चे आईडी का बच्चा? मैं सबसे जो अच्छी चीज़ कर सकती हूँ कि मैं रियल बाकी सारे सब्जेक्ट को बच्चा फिर भी पास कर दे रहा है पॉइंट पे, लेकिन बच्चा कंटिन्यूसली फेल हो रहा है मैथ्स और साइंस में, जिसकी वजह से वो पर्सन फेल हो जा रहा है। मैम पहले तो ये चेक करेंगे कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं उन चीज़ों में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको फियर किस चीज़ का है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम वो एज तक जा सकता है उस स्टेज तक, या फिर फंक्शनली हमें कुछ ऐसी चीज़ों से सिखाने की ज़रूरत है जो किसी चीज़ को करने के लिए अच्छी है, या फिर देखेंगे कि उसका पीयर प्रेशर तो नहीं बन रहा किसी चीज़ को Not पास for करने के लिए। ओके, एग्जामिनेशन में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वीआई वाले बच्चों के लिए? मैम ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली। लो विजन लोग के अलावा हम बिग प्रिंट बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम चाहे तो ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं बच्चे का। Yes, sir. Sorry. Yeah, please, sorry. Better to know you are basically for a primary lesson that you have applied for, है ना? तो प्राइमरी में जनरली जो बच्चे आते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करोगे? आई एम टॉकिंग इन जनरल। मैम उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे एक स्टूडेंट था उसे डांस करना बहुत पसंद था, हाँ। तो मैं शायद उसको एज अ मेन रोल लेकर आकर डांस करके सिखा सकती हूँ। वो इस चीज़ को एंजॉय करेगा, साथ में जो नॉलेज गेन करेगा वो परमानेंट रहेगी, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को उसे रिदम में म्यूजिक में सिखाऊंगी तो वो उस चीज़ को भूलेगा नहीं।
सेकेंडली मैं उसको एक जगह बिठाने के लिए कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें बना सकती हूँ, जैसे मैं एक इंटरेक्टिव टीएल उसके सामने ले जाऊँ तो वो उस चीज़ में कुछ देर के लिए रहेगा, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैं उसे ब्रेक दे दूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर एक जगह नहीं बैठ सकता। उसके बाद फिर मैं उसे गाने से या स्टोरी से बताऊँगी और साथ में उससे एक्ट करवाऊँगी ताकि ना तो वो लेफ्ट आउट फील हो, साथ में वो अच्छे से कर भी पाए उस चीज़। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 सितंबर है। इस दिन हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्या है उस दिन, क्या बनाते हैं उस दिन हम? इसके अलावा भी कुछ बनाते हैं? इंटरनेशनल उसमें कुछ बनाते हैं? ठीक, थैंक यू, आप जा सकते हैं, बुला रहे हैं आपको मैम, ठीक है, ठीक, वेट करिएगा बाहर बुलाना। कैसा सर? कैंडिडेट अच्छा है, कुछ चीज़ें अगर ठीक ठाक कर ले तो ठीक है। तो उसका ड्रेस जो है वो ऐसा अजीब है कि उसमें ये पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ड्रेस वाला ना, हाँ ड्रेस उसमें स्टार सूट ही ना मेरा। दूसरा जैसे डेमो उसने दिया, अच्छा दिया, दैट वाज वेरी गुड। बट जब ये बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी तो ओल्ड एप हो रहा था बीच बीच में, लिख कुछ और रही है, बोल कुछ और रही है। वो थोड़ा स्लो होना है, रिवाइज करना है। बाकी तो मुझे तो लग रहा है ठीक ठाक है, अच्छी कैंडिडेट है। मुझे पूरे आज सुबह से लेके आई फाउंड हर सो एनर्जेटिक, सो लाइवली, बहुत बढ़िया, वेरी क्यूट, बहुत है ना? वेरी क्यूट, एनर्जेटिक फुल उसके आंखें जो है ना, मतलब और जैसे तारे हैं उसकी हाँ, आंखों में, और उसने ना मतलब उसे पता था कि सामने रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बट उसने जब तक मुझे बुला नहीं लिया, हाँ अभी रुको 2 मिनट, है ना, जब तक मतलब उसने मुझे बुला नहीं लिया, सर से स्मार्ट कहलवा नहीं लिया, उनसे वो नहीं है यूज करना, अब तो मेरे से पूछ हाँ, रही थी, हाँ, आई सेड आई एम टोटली डेफ, हाँ, मतलब जिस तरीके से है ना, और मतलब हाँ, और 8 इसमें मतलब बहुत बढ़िया था, मुझे भी सारा चीज़ और इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी, इन्फॉर्मेशन जितने आए सब ऑलमोस्ट हाँ, बेसिक नॉलेज। बहुत मतलब द वे शी डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड ADHD, दैट्स वाज एंड DC जो DPD है, वो जो DDC आ रहा है उसमें सब पे उसने क्या दिया है, बढ़िया दिया। पर मुझे लगता है कि अगर मैं इसे रोकना चाहूँ तो एक बार कि ये हर सवाल का जवाब ना दे, जैसे वहाँ नहीं होता कि इसे लगता है कि सवाल है ना, आई वाज जस्ट प्लानिंग टू से कि जितना ये बोलती जाएगी ना उतना वो ग्रिल करते वो तो जाएंगे है। जब तक वो, लेकिन ये है कि But it is एक good. चीज है, ग्रिल तो करते जाएंगे, हाँ जी, लेकिन आप देखिए ना, अगर ये ज़्यादा सवाल का जवाब देगी तो ये टॉप पे जाएगी। बिल्कुल दैट इज इट, बस ये है कहीं मैंने फंस ना जाए ना, कुछ नहीं, सामने फंसेगी वाला तो ले नहीं ना ले, है ना, देगी ना, फंसेगी है नहीं, ना, बस वही ला, मतलब ऐसा लगे जब ना आए ये तो वो मेरिट बंद पे हो, जाएगी, है ना? बिल्कुल। चलो सर, मतलब इसमें हाँ नेचुरल है ना, उसको वैसे ही रहने दो। चले बुला लेते हैं। बिकॉज इंटरव्यू लेने वाले कौन होते हैं? मैं खुद इंटरव्यू बोर्ड पर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये इंटरेस्ट तो यही डेवलप कर देना बच्चों के अंदर। 20 साल यही काम किया और क्या किया, हाँ, that's तो good. वो तो मैंडेट पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अच्छी जगह और पहुंचेंगे। यार द यू ड्राइंग कम इन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने आज क्या खाया सुबह से? कुछ खाया? ये लो, खा लो कुछ, खा लो एक तो। केला नहीं है? क्या सिखाया तुम लोगों को? कोई पूछे तो क्या बोलना है? नो सर, नो थैंक यू, नो थैंक्स। चले सर आप ही क्या पहन के आई हो? हम तो तुम्हें ये देखते रहे, ये इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतने सारे शीशे लगे हुए हैं इसमें, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मैंने ऑर्डर किया था, फिर मैं घर चली गई तो कैंसिल हो गया। अदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। तो जब पहन के जाओ ना, सिंपल कुछ भी पहनो, लाइट हो, ये अट्रैक्टिव ना हो, ना रिफ्लेक्टिव ना हो। अगर ऐसा है तो फिर उसे चुन्नी से कवर कर लो, सो दैट यू नो इट वोंट हिट द आईज। हाँ, वो जो पहले नहीं तो पुराने टाइम में जो लगते हैं वो चांद सितारे टाइप, उसमें जो आंखें एकदम से बार बार वो करता था। हाँ हाँ, जो भी आपको अच्छा इतना लगे। जानती हो कि बोलते बोलते तो ध्यान ही नहीं रहता, बच्चों को पढ़ा रहे भाई। और सबसे बड़े पता है, एक जगह मैंने आपसे कहा था, पता नहीं मुझे क्यों याद था, मैंने कहा कि आपको हमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है। मेरा सवाल ही आपसे ये शुरू हुआ था कि आप टीचिंग जब कराएंगे आपको हमें इन्वॉल्व नहीं करना, और तुमने कि मुझे आपको आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो मुझे करना, तो आपने बोला कि हम नहीं कर रहे, आप अपने तरफ से हमें हाँ, involve करिए। नहीं मतलब उसी लिए मैं कहना चाहिए कि मैंने तो मना ही कर दिया था, हम तो पहले ही बोल चुके थे, बट स्टिल आपने हम सबको क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। और पूनम नो
नहीं इससे नो इट्स अच्छा, मैंने कहा कि हमारा मन नहीं था, बट आपने वो मन बनवाया कि आपने हमें इन्वॉल्व करा लिया। दैट्स ये कॉम्प्लीमेंट है, ये किसी तरीके का कोई वो नहीं है। दैट इज आप गलत समझ रहे हैं। बाकी मैम सब्जेक्ट और वैसे चीज़ें के साथ सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है। बस थोड़ा सा एक चीज़ पे वर्क करिए कि मोर कंक्रीट एग्जांपल्स यूज कीजिए। जैसे आप मंकी और वो उसका स्टोरी समझा रहे थे, थोड़े से और एग्जांपल्स लिखिए, थोड़ा और टीएलएम वगैरह उसको थोड़ा सा और वर्क कीजिए ताकि स्टोरी अच्छे से समझ में आए। मेरा एक बार आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं डेफिनेटली कीजिए, वो अच्छा है। मेरा तो एक बार मन कर रहा था आईडी वाले स्टूडेंट बन के इसके जो बंदर की ना वो पूछ तोड़ दूं, पर फिर मैंने सोचा है ना बड़ी मतलब ये मेरा मन आया मैं से तोड़ दिया ना, बस यही वजह से कि तुमने मेहनत की मैंने तोड़ा। बहुत बढ़िया पूनम, इसी तरह अपने आप को ना पॉलिश कर दो। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। बंदर तुम्हारा बहुत अच्छा है। बंदर अच्छा था तुम्हारा। अब तुम झाड़ू, हाँ सुनने झाड़ू पहुंचा सब लगा लो जो लगाना है। ठीक है चले, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेलकम। मान के चलो कि एक सीट तो तुम्हारा रिजर्व है। बस और कॉम्पिटेंट ये यहाँ पे कुछ हुआ ना, मैं पूछना चाह, अच्छा बर्थ मार के ये एक बच्चा और होगा ना, बस बुलाना से एक बार। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।